Good morning, students. We were doing the chapter Why Do We Fall Ill? Today we are going to discuss the rest chapter. So, this is the topic Means of Spread of the Diseases. So, there are different mode of entry of microbes which decides the site of localization. That is, there are different modes. ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि माइक्रोब्स ने कहाँ से एंट्री ली है. If a microbe enters through a nose, it can cause respiratory disease. It can cause tuberculosis, which is infection of lungs. If a microbe infects the liver of the organism, liver of the human being, then it can cause the jaundice. Jaundice is the condition where a pigment named bilirubin, which is present in bile, if it extends, if it over अगर बाइल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है तो बिलीरुबिन बढ़ जाता है. कि बिलीरुबिन ज़्यादा होने की वजह से ही जॉइंडिस नाम का डिसीज़ होता है जिसको पीलिया भी बोलते हैं. ये बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर का ही पिगमेंट होता है, इसीलिए इसको पीलिया भी बोलते हैं. ये जॉइंडिस डिसीज़ इसी पिगमेंट के ज़्यादा बनने की वजह से होता है. Similarly, if a mosquito bites, then it first infects the liver, then it results into the breakdown of red blood cells. Then ultimately, we feel feverish, we felt the fever. There are many symptoms which tells us about the disease, such as cough tells us about the respiratory disease. If person is suffering from the cough, then it means there is infection in the lungs. If a person seems yellowish in color, yellowish eyes, it proves that he is suffering from the jaundice. So jaundice is the condition of infection in the liver, so it is a liver disease. If a person is suffering from the stomach ache, vomiting, and fits, so it is the condition of brain. So it is the condition where brain is suffering some problems. So in addition to many diseases, AIDS is the disease which spreads all over the country now. It starts in the USA in 1981. Now it spreads all over the world. Here is the causal organism of AIDS. First of all, what is AIDS? AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, and causal organism is human immunodeficiency virus. See, disease name is acquired immunodeficiency syndrome. So what is acquired means? Acquired means acquired, which you acquired in a lifetime. It is not inborn disease. It is acquired in a lifetime. Then immunodeficiency, that is कि ये आपको इम्यून डेफिशिएंट बना देगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देगी. मतलब अब आपकी इम्यूनिटी चली जाएगी, और जब आपकी इम्यूनिटी चली जाती है एक बार, तो आपको सिंपल सा कोल्ड भी आपको बहुत ही सिवियर डिसीज़ कॉज कर देता है. हल्का सा कोल्ड भी आपको निमोनिया तक ले जाता है और अल्टीमेटली डेथ कॉज कर देता है. सो एड्स में क्या होता है बच्चे कि एड्स में वायरस एंटर्स योर बॉडी, इट यूजेस योर मशीनरी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ and damage your immune system, and you are susceptible to gain many diseases. आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपको हल्का सा जुकाम भी बहुत डेथ तक ले जाता है. आपको हल्की से हल्की छोटी से छोटी इन्फेक्शन के लिए आपकी बॉडी रेडी नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर ही नहीं होता कि आप उससे लड़ पाएँ. So in case of cold, if you are suffering from common cold, then it will lead to pneumonia, and it will ultimately lead to severe diarrhea, which can ultimately lead you to death. Now next is transmission of disease. So transmission of disease कैसे होती हैं? Through microorganisms, through contamination of various things, various diseases. Here in this picture you can see the various type of microorganisms. See, these are spherical bacteria जिन्हें हम कॉकस बैक्टीरिया कहते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया जिन्हें बेसिलस कहते हैं,
देन दिस स्पाइरल बैक्टीरिया जिन्हें हम स्पिरुले बैक्टीरियाज भी बोलते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इनको विब्रियो बोलते हैं। विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया होता है जो विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, जो जिसकी वजह से आपको कॉलरा जैसी डिसीज हो जाती है। Then there are many common ways of transmission of diseases such as direct contact. Microbial organisms are transmitted from an infected person to healthy person in various ways. So first है direct contact, या एयर के थ्रू हो सकता है, या वाटर के थ्रू हो सकता है, या फिर पेट्स के थ्रू भी आपको ट्रांसमिशन हो सकता है डिसीज का। पेट्स के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू भी हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिशन बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। और क्या है वो एक्सटर्नल एजेंट्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। नाउ हियर दिस पिक्चर शोज द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज थ्रू एयर। तो कौन से कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें डिसीज का ट्रांसमिशन होता है? सो ओवर क्राउडेड एरियाज या पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज, जो एरियाज जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, पुअर वेंटिलेशन है, तो वहाँ पे क्या होगा? देखो इस पिक्चर में ये पर्सन स्नीज आउट कर रहा है और इसके स्नीज के ड्रॉपलेट्स क्या हैं, आसपास के लोगों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है, एक थोड़े से स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये क्या है, ये जो स्नीज के ड्रॉपलेट्स हैं ये रिसर्कुलेट करते रहेंगे रूम के अंदर ही, और सभी को खतरा हो सकता है इससे, इस फ्लू को लगने से वापस इसी का इन्फेक्शन सबको लग सकता है यहाँ पे। सो एयरबॉर्न डिसीजेज, सो बच्चे वो डिसीजेज जिसमें माइक्रोबियल ट्रांसमिशन थ्रू एयर हो उनको हम एयरबॉर्न डिसीजेज कह देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। कॉमन कोल्ड सबसे लो कंडीशन होती है, कॉमन कोल्ड फ्लू है, हम सबको हो ही जाता है जनरल। उससे ज़्यादा जब ये पैनिक हो जब उससे ज़्यादा कंडीशन थोड़ी सिवियर होती है तो उसको निमोनिया कह देते हैं, जिसको भी ट्रीट किया जा सकता है। देन अल्टीमेटली निमोनिया लीड्स टू ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज अ सिवियर कंडीशन। यहाँ पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस मे प्रूव फैटल इफ़ नॉट ट्रीटेड। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज थ्रू वाटर। सो वाटर में भी क्या, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर एक सीन देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ओपन वाटर में बैथिंग कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो समटाइम्स उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड होते हैं, उनको कोई डिसीज़ हो गया होता है। तो इस वजह इन दिस वे क्या हुआ, उन्होंने वाटर को भी कंटेमिनेट कर दिया। तो वाटर कंटेमिनेट होने की वजह से अब वही वाटर जब हमारी ड्रिंकिंग सोर्सेज में मिल जाता है, उसी में मिक्स हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो वो कंटेमिनेशन का असर हमें भी हो जाता है, ठीक है। तो हम भी अगर कंटेमिनेटेड वाटर लेंगे तो हमें भी डिसीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा इज़ द डिसीज़ विच स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो बच्चे देयर आर टू डिसीजेस, साइफिलिस एंड एड्स, जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से होती हैं। सो ये बच्चे ये वैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक हैंड शेक एंड हग, इन सब की वजह से ये डिसीजेस का स्प्रेड नहीं होता। एंड देर आर अनदर वेज कि ये जहाँ पे ये बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ मदर इज़ प्रेग्नेंट एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स, देन शी मे गिव इट टू हर बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। She also may give it to her baby. Now talking about transmission of disease through vectors. अब ये vectors क्या होते हैं? The living organism that carry microorganism from a sick person to healthy person are called vectors. So vectors कौन हैं जो disease को एक healthy person से infected person में ले जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स, अब ये वेक्टर्स जो हैं ये एड कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ में। अब ये वेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल पेट्स भी हो सकते हैं, मॉस्कीटो भी एक वेक्टर है, ठीक है।
सो ये क्या करते हैं बच्चे, ये ट्रांसमिशन करते हैं डिसीज़ का फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। देखो बच्चे, मॉस्किटो के केस में तो क्या होता है, नॉर्मल फीमेल एनोफ्लीज या नॉर्मल मॉस्किटो कभी भी मलेरिया कॉज नहीं करता। सिर्फ वही फीमेल एनोफ्लीज जो कि इन्फेक्टेड होती है प्लाज्मोडियम से, जब वो आपको बाइट करती है तब आपको वो मलेरिया कॉज करती है। सो मलेरिया कॉज करती है, वो आपको बाइट करती है। बाइट करते वक्त अच्छा, हमारे ब्लड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ब्लड हमारा कोएगुलेट हो जाता है जल्दी से, है ना, क्लॉटिंग हो जाती है उसकी। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है आपको, आपका ब्लड चेक करती है, और ब्लड चेक करने के दौरान अपने मुंह के सलाइवा को आपके ब्लड में पोर कर देती है। उसके सलाइवा जो होता है वहाँ पे एंटी कोएगुलेंट का काम करता है, वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। जब तक आपको टिकलिंग सेंसेशन होती है तो तब तक वो ब्लड सक करती रहती है, क्योंकि उसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि वो एग ले कर सके, ठीक है। तो वो वहाँ से ब्लड चेक करती रहती है, देन आपको सेंसेशन फील होती है, देन तब आप उसको हटा देते हो। फिर वहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे आपको सूजन नज़र आती है ना, कुछ भी थोड़ा आउटग्रोथ से निकल गई या रेडनेस होती है। तो ये जो भी रेडनेस होती है या जो भी ये सूज जाता है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली इन्फ्लेमेशन। होता क्या है, जब भी ऐसे कोई बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ही एलियन पार्टिकल बोल देते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी फॉरेन बॉडी जब आपकी बॉडी में एंटर करती है, ब्लड में एंटर कर जाती है, तो आपकी बॉडी उसको नॉन सेल्फ कंसिडर करती है। नॉन सेल्फ का मतलब अब ये उसकी खुद की नहीं है, बॉडी को ये बात पता है, तो उसको नॉन सेल्फ कंसिडर करती है। तो जब भी उनको लगता है कि ऐसी कोई चीज़, बॉडी को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो नॉन सेल्फ है, हमारी नहीं है, तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स उससे फाइट करने के लिए आ जाते हैं। इन्हीं सेल्स को हम इम्यून सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, जब मॉस्किटो ने आपको बाइट किया वहाँ पे सूजन आ गई। क्यों वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, क्योंकि वहाँ पे इम्यून सेल्स अक्यूमुलेट हो गए। इसी चीज़ को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो अब माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रोब्स आपके लिए एलियन पार्टिकल हैं, एक्सटर्नल एजेंट हैं, और आप इसके डिफेंस में आपके पास क्या है, आपके पास है इम्यून सेल्स। इन इम्यून सेल्स में बहुत तरह के सेल्स आते हैं बच्चे, टी सेल्स, बी सेल्स, मेमरी टी सेल्स, मेमरी बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफाइल्स, ये सारे सेल्स हैं, पर इतना डिटेल में भी आपके सिलेबस में ये नहीं है। There are two different ways of treating infectious disease. One is by reducing the effect of the disease, also called as simple symptoms based treatment, and other is to eliminate the cause of disease. सो दो तरह के हैं बच्चे, एक सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, एक होता है एलिमिनेशन ऑफ द कॉज। अब बच्चे ये मुझे आप खुद सोच के बताओ कि कौन सा बेस्ट होगा, सिम्टम्स को ट्रीट करना या फिर जो कॉज है उसको एलिमिनेट करना। ये बच्चे आता है, ये दोनों ही चीज़ें आती हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में, कि अब डिसीज़ तो आपको हो गया है, एनी हाउ डिसीज़ आपको हो गया है, तो अब उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। उस ट्रीटमेंट के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक सिम्टम डायरेक्टेड होता है, एक कॉज को एलिमिनेट करने वाला होता है, ठीक है। अब सिम्टम ऑफ डिसीजेज में आपको पता है कि डिसीजेज कैसे भी हो सकते हैं, पैथोजन यानी कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब पैथोजन कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। बायोटिक वर्ड लाइफ से आता है ना, मतलब अगेंस्ट द लाइफ। अब बैक्टीरिया भी क्या है, लाइफ है, किसी लाइफ की वजह से आपको डिसीज़ हुआ है, तो ये अगेंस्ट द लाइफ यानी एंटीबायोटिक। यानी एंटीबायोटिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपको डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ता है और उसको हेल्प करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, ये उसको डैमेज कर देता है, ये सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देता। आपने मान लो आपको कोई डिसीज़ हुआ, आपको इन्फेक्शन हुई, आपने एंटीबायोटिक ली, अभी एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देगी, उसको बनने नहीं देगी, तो बैक्टीरिया अपने आप ही काम नहीं कर पाएगा। दस इन दिस वे एंटीबायोटिक्स वर्क्स।
नाउ एंटीवायरल ड्रग्स किल्स वायरस। देखो बच्चे, एंटीबायोटिक्स के कंपैरिजन में एंटीवायरल ड्रग्स को बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वायरल डिसीजेज होती हैं, वायरस बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाके ये लिविंग बनता है। सो एंटीवायरल ड्रग्स बनाने के लिए हमें लिविंग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा टीडियस वर्क होता है। देर आर सम प्रॉब्लम्स इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? द बॉडी फंक्शंस गेट डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। ट्रीटमेंट मे टेक टाइम। द इन्फेक्टेड पर्सन सर्व एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, जो घर पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हो सकता है कि उसके द्वारा फैमिली के बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी इन्फेक्शन पहुंच सके। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज़ बेटर देन क्योर। सबसे बेस्ट मेथड यही है, आप किसी भी डिसीज से प्रिवेंट कर लो, आप किसी भी चीज़ को होने ही ना दो। ठीक है, ये एक बेस्ट टेक्निक है। सो अब डिसीज़ भी हो गई, अब ट्रीटमेंट भी हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको प्रिवेंशन करना है, कि अब ऐसा करना है कि कोई डिसीज़ हो ही ना। हमें ऐसे काम करने हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन हो ही ना। हमें अपने इस प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अब वो चीज़ें देखते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एयरबोर्न डिसीजेस को कैसे घटा सकते हैं, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी को? So airborne microorganism can be prevented by providing living condition which are not overcrowded. हम बहुत ज़्यादा overcrowded एरिया में ना रहें, खुले एरियाज में रहें, तो एयरबोर्न डिसीजेस से बच सकते हैं। हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर पी के या फिर बॉइल्ड वाटर पी के वाटर बॉर्न डिसीजेस से बच सकते हैं। उन डिसीजेस से बच सकते हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर से हमें लग सकती हैं, जैसे कॉलरा वगैरह। Then vector-borne diseases can be prevented by providing clean environment. अगर clean environment होगा, प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह बने होंगे, ओपन में नहीं होगा कुछ भी, तो इस तरह से वेक्टर बॉर्न डिसीज से आप बच सकते हो। जैसे मॉस्कीटो जो है अलग अलग जगहों को कंटेमिनेट कर देता है, या किसी फीकल मैटर पे बैठ गया और फिर आके फूड पे बैठ गया। अगर मॉस्कीटो को ऐसे कंडीशंस ही नहीं मिलेंगे तो आपको वेक्टर बॉर्न डिसीजेस भी नहीं होंगे। Public hygiene is a basic step to prevent infectious diseases. अब बच्चे यू मे आस्क कि एक रूम में अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है, सपोज एक क्लासरूम है, उसमें एक पर्सन इन्फेक्टेड है, आप सब पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि सबके सब बच्चों को जुकाम लग गया उस दिन। कुछ बच्चों को लग भी जाता है और कभी बहुत सारे बच्चों को नहीं भी लगता। तो बच्चे ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। आज देखो, आज का दौर ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दीज डेज क्या चल रहा है आप सबको पता है, कोरोना वायरस। तो ये सबको नहीं हो रहा एक्चुअली में। वैसे तो वायरल डिसीजेस बहुत डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन फिर भी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको सिम्टम्स भी नहीं आते और उनको डिसीज़ नहीं लगती। हमारे इम्यून सेल्स, अभी मैंने बताया था आपको कि हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल को, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो वायरस है, उन सबको नॉन सेल्फ कंसिडर करते हैं और खुद उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये पिक्चर भी यही डिपिक्ट कर रही है। अच्छा न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस्ड डाइट, अच्छी डाइट हमें प्रिवेंट करती है इन सब से, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और हमें डिसीज से प्रिवेंट करती है। एक और बात बच्चे, जब भी हमें एक इन्फेक्शन हो जाता है, अब सपोज़ आप इन दिनों सुन भी रहे होंगे कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको दोबारा कोरोना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वो वाले सेल्स बन चुके हैं। अब आपकी बॉडी उन सेल्स को, उन फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानती है, तो अब बॉडी आपकी मेमोरी सेल्स जनरेट करती है। मतलब आपकी बॉडी में डिफेंस वाले सेल्स तो थे ही, अब आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स भी आ गए। अब इन मेमोरी सेल्स के पास मेमोरी है, ये रिकग्नाइज कर लेते हैं कि आने वाला इन्फेक्शन एक बार पहले भी आ चुका है, तो अब आपके पास मेमोरी सेल्स हैं। अब ये मेमोरी सेल्स उनसे फाइट करते हैं, तो इसलिए ये मेमोरी सेल्स आप उनसे फाइट करते हैं, इसी बेस के ऊपर वैक्सीन बनाई जाती है। This picture depicts the same which I have stated. देखो अब मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स उसी इन्फेक्शन से दोबारा लड़ रहे हैं। अब देखो इम्यून सेल्स नहीं, यहाँ पे मेमोरी सेल्स शो हो रहे हैं। वैक्सीन भी इसी तरह से बनाई जाती है।
देखो बच्चे, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन लिखा हुआ है। इम्यूनाइजेशन का मतलब ही है कि आपको वैक्सीन दे दी गई या फिर आपको ऐसे मेथड्स यूज़ किए गए हैं कि आपको ये वाले डिसीज़, आपको डिसीजेस, वायरल डिसीजेस या बैक्टीरियल डिसीजेस ना हो। तो इम्यून करने के लिए इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन भी वन ऑफ द मेथड है। स्मॉल पॉक्स की बच्चे एक हिस्ट्री है। ये स्मॉल पॉक्स एक टाइम ऐसा था कि जब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसका पेंडेमिक हो गया था, जैसे आज कोरोना वायरस का है। तो स्मॉल पॉक्स में भी क्या किया गया, वैक्सीन बनाई गई। उन वैक्सीन्स में क्या करते थे बच्चे, किल्ड ऑर्गेनिज्म को लेते थे, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते थे, किल्ड स्मॉल पॉक्स के वायरस को ही लेते थे। तो उसको क्या करते थे, उसको इंजेक्ट कर देते थे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। अब क्योंकि वो किल्ड है या फिर वीक है, तो वो आपको इन्फेक्शन तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ज़रूर बना देगा, आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स आ जाएंगे उसके लिए। क्योंकि वो वीक है, तो आपकी बॉडी आसानी से उसका डिफेंस कर सकती है, उससे लड़ सकती है, और आपके पास उसके अगेंस्ट सेल भी आ गए। इसी प्रिंसिपल के ऊपर वैक्सीन वर्क करती है। तो स्मॉल पॉक्स के केस में क्या होता है, डेड स्मॉल पॉक्स वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले। फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एज द सस्पेंशन आर वैक्सीन्स। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बच्चे एडवर्ड जेनर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये उस समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स थे, जिनकी वजह से एक सीवियर पेंडेमिक को हटाने में, इसको इरेडिकेट करने में समर्थ हो पाए हम। There are vaccines for polio, whooping cough and tetanus. So बच्चे, this is your chapter why do we fall ill. We are done with this chapter. अब आपकी queries के लिए you are free to ask any time. Thank you so much.